خدا نے جو گرائے ہوئے فرشتے ہمیں بتائے کلام خدا میں، یا پھر جو لفظ آیا ہے کہ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ خدا کے بیٹوں نے کیا کی؟ شادیاں کی۔ گزشتہ ہم لوگوں نے ایک پارٹ اس پہ سیکھا تھا، آج ہم حصہ دوئم کرنے کو ہے، اور آیت مقدسہ میں چاہتا ہوں بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم مل کر، حارث بھائی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب، پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی سے 4 آیت تک۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے، جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی، تو خداوند کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہیں کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ سو پاک کلام سے پڑھیں گے، سنیں اور دیکھیے گا کہ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، یہاں پر اس پیسج کو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو 4، 5، 6، 7 اور 8 آیت تھی، اسے بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ لکھا ہے بشر کی عمر جو ہے 120 برس ہوگی، لیکن ہم نے جانا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی سو سال عمریں رہی، تو 120 کیا ہے، اس کے گہرے بھید کو ہم نے جانا کہ 120 کیا ہے، لاسٹ فائنل ملٹیپلائی اس کو 50 سے 50 کیا ہے، جوبلی۔ جوبلی کا ذکر کہاں پہ ملتا ہے؟ احبار کی کتاب میں۔ تو 50 کی جوبلی کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ 120 کے ساتھ، تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے؟ 6000۔ اب آپ سوچئے گا خدا نے اس کا روزے سے کیا لینا دینا ہے، اور حارث بھائی کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا بہت بڑا ایک اس میں بھید ہے۔ تو آج خدا نے ہمیں جو دیا، میں آپ تک جب خدا نے چاہا روزے کا میسج ہوگا تو اس میں ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے، ایک دن کو بھی ایڈ کریں گے، ایک دن 1000 سال کے برابر اسے بھی ایڈ کریں گے، اور حارث بھائی کی گواہی کو بھی ایڈ کریں گے۔ بے شک ہم نام نہیں لیں گے، لیکن جنرلی طور پر خداوند جو ہے جو ہمیں دے گا تو اس کو ہم روزے کے ٹاپک میں رکھیں گے۔ تو 6000 سال، 6000 سال کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا؟ 6000 سال بعد گزر جائیں گے، اور 1000 جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا ہوگا۔ وہ 1000 سال کو کیا کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں؟ 5 سبت کہا جاتا ہے، اور 1000 سالہ بادشاہ، 1000 سالہ بادشاہی، جے مسیح کی۔ بالکل، خدا یسوع مسیح جو ہے اس زمین پر ایک دن یا 1000 سال جو ہے وہ بادشاہی بھی کریں گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت چیزیں تھی۔ پھر ہم نے جبار دیکھے کہ نیفلمس جو ہیں، جبار جو ہے یہ گرائے گئے، جن کا مطلب یہ گرایا ہوا، وہ گرائے ہوئے دونوں لفظوں میں ٹھیک ہی ہیں، اتو بھی گرائے ہوئے، خدا یہ نظرہ جو بھی گرائے ہوئے۔ تو آگے جب آپ چلتے ہیں، ہم نے حنوک کی کتاب، جسے حنوک کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، ہم نے یہ بھی جانا کہ حنوک کی کتاب کو ہم صرف ایک ہی وجہ ہے جس سے الہی نہیں مان سکتے۔ باقاعدگی کے طور پر ہم نے جو 7واں اور 8واں باب پڑھا تو اس میں ایسی کوئی ہمیں بات نظر نہیں آئی کہ جو خدا کے خلاف ہو یا جس میں خدا یسوع مسیح کی پیشن گوئی نہ ہو۔ تو ان 2 ابواب کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ جانا کہ صرف ایک ہی بات ہے جس سے ہم اسے الہی نہیں مان سکتے، وہ ہے نوح کا طوفان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوح کے طوفان میں تو آسمان زمین ایک ہو گیا تھا، تو پھر یہ آج کتاب کیسے مل گئی اور صحیح سلامت ملی؟ اگر خدا کی قدرت دیکھتے ہیں تو خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آگے سے بیلنس کر دیتی ہیں۔ اس چیز کا توڑ کے نوح کے زمانہ کا طوفان آیا تو یہ کتاب تباہ ہو گئی، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا تو جب کچھ چیز لانے کو ہوتا ہے تو وہ تباہی کے باوجود بھی لے آتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس چیز کا یہاں انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، پھر تعلیم پر بات آ جاتی ہے۔ تو 2 باب جو ہم نے پڑھے، 7واں باب حنوک کا، حنوک کی کتاب کا، اور 8واں باب، اس میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ جو وہ خدا کے خلاف بات کرتا ہوں۔ ہاں، ہمیں فالن اینجلز، گرائے ہوئے فرشتوں کے بارے میں کافی کچھ
मालूमात मिली। 7वां बाब हम पढ़ चुके थे। 8वें बाब की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, इसकी एक ही आयत पढ़ेंगे जहां पर लिखा है, और अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवारें, छुरियां, ढालें और जानलेवा हथियार बनाना सिखाए, और उन्होंने जमीन की खातों और उन्हें बनाने के फन से आगाह किया, और उसने कंगन और जेवरात और सुरमा का इस्तेमाल और पलकों को बिगाड़ने का और कीमती पत्थरों की इकसाम और रंगने के लिए मुख्तलिफ तरीके सिखाए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ पिक्चरें सेंड की थी मेकअप की, वो एंशियंट बैबिलोनियन मेकअप जिसे आपने देखा होगा, जो अक्सर हिंदी में भी वो लगाती है, बहुत सारा गाढ़ा चूना और आंखों को ऐसे ऐसे करके वो करते हैं, डांसर्स अक्सर करते हैं। वो मेकअप जो है वो अपने देवी देवताओं को अट्रैक्ट करने के लिए लगाते थे। वो मेकअप जब आहिस्ता आहिस्ता, आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा, जो केव मैन्स होते हैं, स्टोन एजेस में जो रहते हैं, यानी कि पत्थर के जमाना में जो ऐसे जंगली लोग जिसे कहते हैं, या जंगली ने, तो उन्होंने भी अक्सर मुंह पे या जिस्म पे कुछ इस तरह का लगाया होता है मवाद। तो वो सारा उनकी जो है वो सैटेनिक लाइफ को जाहिर करता है। वो सैटेनिक लाइफ को, आप बैठे आप आए बारी बारी से, वो सैटेनिक लाइफ को जाहिर करता है। तो आप जब देखते हैं कि उसको चीज को आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया, और मॉडर्न करके हमारे सामने क्या लाया गया जी, आज मेकअप की सूरत आ चुकी है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई। फिर सेकंड हमने ये भी जाना कि जब आप कनू की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें बॉडी बिल्डिंग जो है ये भी दिखाई गई कि ये भी जो आज जो हम जिम करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हमारी भाई या बहन जो भी करती है तो सबसे पहले तो अपने कपड़े उतारती है, या हमारा भाई जो है वो पहले कपड़े ही उतारता है। तो आप देख सकते हैं कि डीपी पे पिक्चर भी लगी हुई है हमारे भाई की। तो ये भी एक सिलसिला जो है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, रनिंग से बढ़कर इस कायनात आपने कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। रनिंग, मेहनत, मुशक्कत। मॉडर्न अगर एक्सरसाइज लेते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्क्वॉश, मगर उस वक्त ये चीजें नहीं थी, तो रनिंग जो थी ये सबसे बेहतरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, इससे बढ़कर एक्सरसाइज कोई हो नहीं सकती। उसके बाद जब और भी देखते हैं, आपने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो जो बना होता है हीरो साहब, एक्चुअली थे तो वो विलन, तो वो जो विलन हीरो साहब बने होते हैं, आपको पता है वो मेकअप लगाया होता है उन्होंने, तो जेवर पहने होते हैं, औरत बने होते हैं, वो क्या बनी होती है, मैं आपको हिंट देता हूँ, वो औरत बनी होती है, काली माता बनी होती है। क्या होती है? और काली माता क्या मांगती है? खून मांगती है। मांगते हैं खून, देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। हमारा रब अपना वजूद पेश करता है, बैठना नहीं, खड़े रहना वरना आप सो जाएंगे। तो हमारे रब ने क्या किया? अपना वजूद पेश किया है। मैं भी देखो रोता हूं। अब जब आप देखते हैं, फिर इन्होंने मैजिक करना सिखाया, जादू करना सिखाया, और जादू के बारे में लिखा है कि खुदा ने तो पुराने अंदाज में कहा जादूगर ने जिथे वेखो नु वेंदे ही ओरा गुनाह भी हो रही शेयर करते हुए, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई ओरा गुनाह नहीं है। फिर आप देखते हैं कि नोकीली ढालें, आपने देखा होगा स्टोन एजेस में जो पत्थर थे, पत्थरों की नोकें बनाई जाती थी, उनको इस्तेमाल किया गया। फिर आप देखते हैं, इसका हमें जिक्र पैदाइश की किताब में मिलता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 19 से लेके 22 आयत तक। सुनिएगा गौर से, लिखा क्या है कलाम खुदा में? और नमक 2 औरतें ब्याह आया। आपको इस कायनात में सबसे पहले तहरीरी तौर पर 2 शादियां जो नजर आती हैं वो पैदाइश 2 बाब में, सॉरी 5 बाब में, जिम्मे 5 बाब से 2 शादियां हुई, 6वें बाब से तूफान आ गया। 2 शादियां भी खुदा को पसंद नहीं है। मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि हालांकि आदम के लिए और भी अरवाह बहुत है, रूह की जमा अरवाह, यानी आदम दे भी होर भी रूहां बढ़िया सन, मैं तो ज्यादा भी पैदा कर सकना, लेकिन एक ही आदम के लिए एक ही हवा को पैदा किया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इसका मतलब है आप 1 से 7 ज्यादा शादियां करते तो वो फिर खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होती। वो कौन सी तरस नस्ल पैदा होती है? शैतान तरस नस्ल पैदा होती है। ये खुदा का कौल है।
ایک آدم کے لیے ایک ہوا کو بنایا گیا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ ایک آدم لیے 4 ہون گیا، 5 ہون گیا، 20 ہون گیا، تو 2 ہون گیا، تو وہ پھر شیطان ترس نسل ہی ہوگی۔ ہاں دوسری اگر ہوا آپ کرتے تو اس کے ضوابط، اس کے قواب و ضوابط، اس کے جو ہے رول ریگولیشن بتائے گئے۔ اگر آپ کا جیون ساتھی فوت ہو جاتا ہے اور آپ 60 سے نیچے کی بیوہ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپشن خدا نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر آپ کی ہسبینڈ فوت ہو گیا تو آپ زندہ خدا کو اپنا حقیقی ہسبینڈ شوہر مان کے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اسے یہ بھی کہہ کہ مست رہنا چنگا ہے، بیاہ ہی کرنا ہے۔ مست رہنے سے اچھا کیا ہے؟ شادی کرنی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لمک نے 2 عورتیں بیاہ لیا، 2 شادیاں اس نے یہاں پر کی، اور آگے لکھا ہے ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام ضلع تھا، اور ادا کے یابل پیدا ہوا اور ان کا باپ تھا، اور وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے تھے، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا۔ کیا تھا؟ یوبل تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نام کرسچنوں میں بڑے پائے جاتے ہیں، یہ نام یہاں پر آپ کو پیدائش میں ملتے ہیں۔ اور وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ یہاں پہ میوزک آ گیا، بین اور اب آپ سوچیں بانسلی کتنی پرانی ہے، نوح کے زمانے سے پہلے، دنیا غرق ہونے سے پہلے کا یہ ساز ہے۔ نوح کے زمانے کی پہلی دنیا غرق ہو گئی، اس سے بھی پہلے کا یہ ساز ہے۔ پیدائش 5 باب میں کیا بجائی جا رہی ہے؟ بانسلی۔ بین، بین بھی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے جواب دیتے ہیں 22 آیت میں لکھا ہے اور ضلع کے بھی اور بلقائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور ناما تو بلقائن کی بہن تھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ آیا ہے لوہے کے ہتھیار۔ یہ ہتھیار کس لیے بنائے گئے تھے؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے کہ یہ ہتھیار جو ہے لوہے کے جو ہیں وہ جنگ کے لیے بنائے گئے، خون ریزی کے لیے بنائے گئے؟ کوئی ہنٹ؟ ہتھیار بنائے تو کسی یوز کے لیے ہتھیار جانور کو مارنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، روٹی کھان لے، جگہ جگہ سٹال لگے ہوتے ہیں ہتھیاروں کے۔ جی کیسے آپ بتا سکتے ہیں یہ وار کے لیے، جنگ کے لیے، خون ریزی کے لیے، وہ بھی انسانوں کی خون ریزی کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے بھی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو چوتھے باب میں آپ کو اس کا اسی باب میں جواب مل جاتا ہے۔ یہ آپ جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ایکچوئل یہ قائن کی نسل تھی۔ کس کی نسل تھی؟ جب آپ چوتھا باب شروع کرتے تو لکھا یہ قائن کی نسل کا نسب نامہ کیا ہے جی؟ قائن کی نسل۔ تے قائن نے کی کیتا ہے؟ اپنے سکے بھرا تے ایدی نسل نے بانسلی بجا کے کی کرنا ہے؟ بین بجا کے کو خدا دی ہم دوسرا نہیں کرنی، انہوں نے کرنی تھی جیسے بابل کا سب سے پہلا خدا کے سامنے، خدا کے اگینسٹ، خدا کے خلاف کھڑا ہوا فرسٹ سیولائزیشن ہلک نمرود بادشاہ اپنی حمد و ثنا کے لیے ساز بجواتا تھا۔ نمرود بادشاہ اپنی حمد و ثنا کے لیے ساز بجاتا تھا۔ اس کو جب آپ ماڈرن ایرا میں دیکھتے ہیں تو بائبل کے ماڈرن ایرا میں جب اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ کو نبوکدنضر بادشاہ نظر آتا ہے۔ نبوکدنضر بادشاہ جو تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ نبوکدنضر بادشاہ بھی ساز بجاتا تھا، بین بجاتا تھا، بربت بجاتا تھا، اور بولتا تھا میری دیوتاؤں کو اور ساتھ میں یہ جو سونے کا میں نے مجسمہ کھڑا کیا ہے اس کو کیا کرو؟ پوجو۔ یہ ساز صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتے یا خدا کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ ہر چیز جو خدا کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے شیطان اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مقدس داؤد نبی تو ساز 10 سارا ساز صرف بجاندہ ہی سی تو بدروہیں نکل جاتی، ساؤل کی ناپاک روح نکل جاتی تھی۔ لیکن جب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں نسل جو ہے وہ وہی کام کرے گی جو ان کا باپ کرتا رہا، اور یہ ساز بھی اور ہتھیار بھی لوگوں کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے، لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے لیے بنائے گئے۔ 2 شادیاں بھی یہاں پر ہوئی،
تو خدا ترس نسل تو پیدا نہیں پھر ہوگی، پھر وہی ترس نسل پیدا ہوگی جس کے بارے میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں. پھر ان فالن اینجلز نے اور بھی بہت ساری تعلیمات دی. ستاروں کا علم، ستاروں کا علم، سورج دیوتا کی پرستش کرنا، چاند کا علم، چاند کی پوجا کرنا. آپ دیکھتے حزقیہ بادشاہ کا بیٹا منسی آسمانی لشکر کی پوجا کرنا شروع ہو گیا. آسمان پر چاند، سورج، ستارے، سیاروں کی حرارت کی وجہ سے وہ اس کی کیا کرنا شروع ہو گئے؟ پوجا کرنا شروع ہو گئے. اور یہ یہوہ خدا کو ماننے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی. یہوہ کو جو خدا مانتے تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے یہ بت پرستی. اور آپ کو پتہ ہے بت پرستی آج بھی ہے. کیسے؟ چاند، سورج، ستارے. آپ شنٹوازم دیکھتے ہیں، جاپان کا جھنڈا، تو جاپان کے جھنڈے کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو سورج بنا ہوا ہے. شنٹوازم سورج کی پرستش کرتے ہیں. اسی طرح آپ چائنا کو دیکھتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. ملیشیا میں بھی چاند، جی ملیشیا میں بھی چاند بنا ہوا، انڈیا میں بھی کرتے ہیں سوریہ نمسکار. جو امریکہ کے جھنڈے میں اسٹار. جی بالکل. تو آپ جب دیکھتے ہیں ہمارے ادھر چاند بنا ہوا ہے بال کی طرف سے، بال کے سمبل کریسنٹ. تو جب آپ دیکھتے ہیں اسے، اس مون کو، اس چاند، سورج، ستاروں کو، تو یہ آج بھی ہماری پڑوسی ممالک یا پھر دنیا کی بڑی قومیں جو ہیں آج بھی اس بت پرستی میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ کن کا تھا؟ گرائے ہوئے فرشتوں کی تعلیمات. اور جب آپ دیکھتے ہیں ایرو ڈائنامک پلین، جب کھدائی کی گئی آج کے آرکیولوجسٹ نے، تو انہوں نے دیواروں کے اوپر جو فگریٹو لینگویجز تھی، تصویروں کی زبان، وہاں پہ انہوں نے جہاز بنے ہوئے دیکھے جنہیں آج آپ ڈرون کہتے ہیں. ڈرون دیکھتے ہیں، چھوٹے جہاز. ڈرون حملے جڑے ہوتے سر افغانستان سے، تو خان صاحب نے دھرنا بھی دیا تھا. ڈرون حملے وہ پہلے تو پکچروں کے لیے، ویڈیو کے لیے استعمال ہوتا تھا، کرتے کرتے اس میں ماڈرنائزیشن ایسی ہوئی کہ وہ بم مارنا بھی شروع ہو گیا. تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علم اس وقت بھی تھا. آپ اسی لیے تو دیکھیں اہرام مصر جو ہے وہ آج تک یہ کوئی ثابت ہی نہیں کر پایا کہ انسان نے بنایا ہے، شیطان نے بنایا ہے. آج کی سائنس جو ہے سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ یہ جو کائرو کے اہرام مصر ہے یہ کون بنا کے چلا گیا. تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کی مٹی جو ہے، اس کی تعلیمات بھی دی انہوں نے کہ زمین کی مٹی سے کیسے آپ مجسمہ بنا کے اس کی بت پرستی کر سکتے ہیں. اور وہ دیکھیں بت پرستی آج مسیحوں کے اندر. اور جو ہم بات کر رہے تھے نا چاند، سورج، ستاروں کی، یہ مسیح بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں بت پرستی بھی مسیح کرتے ہیں، چاند، سورج، ستاروں کی پرستش بھی. آپ نے گیت بھی سنا، چاند سورج کی پرستش، تو یہ ہمارے لیے ہی ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تصویروں کے پیچھے وہ جو پیلا سا بنایا ہوتا ہے سینٹ بتانے کے لیے، وہ سورج دیوتا ہی ہوتا ہے. تو میوزک سب سے بڑا ویپن ہے. میوزک اکثر گاڑی میں جاتے ہیں ہم سنی بائی کی تو لگ جاتا ہے پارٹی آل نائٹ، ایسے لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ یو ہنی سنگھ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر مجھ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو پھر میں بھی کہنا چلو لائی بھائی مجھے بہت برا لگتا ہے آؤ. پرسنلی. اب آپ دیکھیے گا نوان جی کے سامنے اگر آپ نے لگائی تو چپیڑے آپ کے لیے. بالکل بالکل. تو میوزک ایک ایسا کام ہے کہ آپ اگر کھڑے بھی ہوں گے تو آپ کے سامنے ایسا میوزک آئے گا جو آپ کو پسند ہے، اور وہ سٹینک ہے. کل آپ نے دیکھا سٹینک میوزک سے کیا ہوا، بدروہیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی، اور بدروہیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آئی فزیکل طور پہ. انسانوں کے اندر کیسے اس نے انسان کی تذلیل کی، انسان کو بے عزت کیا. تو میوزک ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان ابلیس کا. میوزک سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان ابلیس کا. تو کیڑا میوزک سنتا ہے؟ یہ کون سا ہے بھائی میوزک جڑا سواد ہے؟ اس کو ویسے ہی نیند آئی ہوگی. یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ٹیپ لگی ہے سو گئے. نہیں سافٹ میوزک لگا. ابے بس کر جا. آگے جب آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، تو میں آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ پڑھنے والا ہوں، آپ لوگ بھی نکالیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے.
हम 3-4 आयतें पढ़ेंगे और उसके बाद इस कलाम खुदा को, इस पार्ट 2 को वाइंड अप करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुकद्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक खत, पतरस का खत, उसका दूसरा बाब, पहला पत्रस पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से 7वीं आयत। पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, निकालिए सबने, पतरस का दूसरा ऊंची आवाज से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। दूसरा बाब पहली आयत, पहली से 7वीं। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे। आप देखिए झूठे नबियों का जिक्र है। हमारे लोग कहते हैं खादमों को कुछ नहीं कहो, खुदा कहता है झूठे नबी भी होंगे ने। आगे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। जी साढ़े विच भी होंगे झूठे उस्ताद, झूठे नबी, झूठे रसूल, झूठे मसीह। आगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। आप अपने घरों में देखें, अपने इलाकों में देखें, अपने चर्चेस में देखें, आप ऐसी बिदत का शिकार होते हैं वो आपको गुनाह नजर ही नहीं आता। आपने कल भी इबादत में देखा, वो आपको गुनाह नजर ही नहीं आ रहा था वो गुनाह। मतलब ऐसे आप तो, खुदा ने आपकी तो रूहानी आंखें खोली है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो ये हो गया, ये हो गया, ये काम ठीक हो गया। तो इबादत खानों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हैं आपके सामने, लेकिन आपको पता नहीं वो आपके लिए पोशीदा है। तो इसलिए मुकाशा की किताब में लिखा है राज, द मिस्ट्री, द सीक्रेट। वो बड़ा शहर बाबुल क्या है? राज। आपके सामने बुत परस्ती हो रही है और आप झुक के उसे सिजदे कर रहे हैं। आपके सामने पता नहीं कौन सी जुबान बोल के उसे गैर जुबान बोला जा रहा है और आप कहते हैं ये रूह कुदुस का नाज़ुल है। द मिस्ट्री, सीक्रेट आपके सामने सब हो रहा है, लेकिन आप उसे इलाही मान रहे हैं। इस गुनाह की माफी नहीं है। पोशीदा क्या है? पोशीदा तौर पर। आगे, हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। अब मैं मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, जबान एक अजीब जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं गैर जबान है, और बड़े तमाशे कर रहे हैं। 100 से ज्यादा हमने बिदतें पढ़ी हैं, लेकिन मैं कहना मैं मानना था यीशु हुआ, तो आप उसे कैसे गुनाहगार साबित करेंगे? आप जब ये काम ही कर लेते ना तो आप मसीह का इनकार तभी कर देते। मैंने आपसे क्या कहा था? आदम 930 बरस जीता तो रहा, लेकिन वो कलाम उसके अंदर नहीं था। आप जितना मर्जी यीशु यीशु करते रहे, बातें करते रहे, कॉन्सर्ट्स करते रहे, फेस्टिवल करते रहे, बड़े बड़े इज्तिमा लाते रहे, लेकिन मसीह की नजर में आप मुर्दे ही हैं। मसीह का इनकार आप कर चुके हैं अपनी आदात से और अपनी अमाल से। और आगे, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बतेरे उनकी शेवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। बहुत सारे उनके लोग भी होंगे, आपको पता है कितने कितने ज्यादा लोग होते हैं। बदनामी किसकी हो रही है? यीशु मसीह राह हक की। राह हक किसे कहते हैं? राह हक, राह, रास्ता, हक, हकानी यानी सच्चा रास्ता। तो सच्चे रास्ते पर जिंदगी है, राह हक और जिंदगी। यीशु की बदनामी। किसकी बदनामी? दूसरे लफ्जों में बाइबल की बदनामी। आगे, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ये ठहराएंगे। क्या होता है लालच से बातें बनाकर? अपनी तरफों या अपने क्या बना सकते? कोई एग्जांपल की दीजिए। बातें। क्या हो सकती मन गड़ी बात? मिसाल के तौर पे कोई लालच बताइए। तो ये लालची, नफा, प्रॉफिट। लालच ऐसे जैसे बाइबल में से 50 रुपए निकाल के अपने ये ऐसा लालच हो ये भी जाएगा, होता है वैसा हो एक किस्म का भाई। क्या हो जाएगा? लालच ये जैसे किसी की सेमिनार औलाद होते नहीं हैं, हो रही तो आप ये ले पैसा ले दूध पिए। जैसे सेमिनार होते चलो इडली फ्री है, खाना मिलेगा खुला, तो लोग चले लालच। जाते हैं। और जैसे यिर्मयाह में लिखे कि नबी कहते हैं सलामती सलामती, लेकिन खुदा की कहना है कि सलामती नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे। अपने नफा जी टाइगर भाई, नहीं तो इधर आजा, लाइट पकड़। ये भी है भाई। जैसे एक पास्टर और- आज गोरों के पीछे पड़े हैं लालच में। एक और हमारे लिए कैसे फंदा है? भाई वो इस तरह से इसराइल में हिजकिय्याह नबी की किताब में लिखा है कि मेरे काहिन जो जिनको मैंने बनी इसराइल को चराने के लिए भेड़ें दी, जो मतलब काहिनों को मैंने इसराइल को निगहबानी करने के लिए दिया, उन्होंने उनकी चरागाह नहीं की
यानी उनको चरागाह नहीं दी, वो खुद तो खाते हैं पर उनको पाक कलाम नहीं देते। बिल्कुल ऐसी है। अब जब आपने सारों ने जो पॉइंट्स बताए बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, लालच से बातें बनाकर अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, आप हमारे पास आओ, यीशु को ना जाओ, किसके पास आओ? मेरे पास। हम आपको औलाद देंगे, यीशु के नाम में देंगे, अपने को नहीं देंगे। नहीं हो रही औलाद, माँ के पास जाइए, मरिया बाप के मेले पे जाइए, नफा दे रहे, क्या दे रहे? लालच दे रहे हैं आपको। दूसरी बात टाइगर ने की, आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की, आप सबों ने की, यही लालच है। वो लालच दे के आपको अपने पास बुलाते हैं। साढ़े को कोई क्यों नहीं आता, उन्होंने पता है कोई कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ लब नहीं कोई। एक बड़ा नाम है हमारे इलाके का, उसने मना कर दिया, जो बच्चा हमारा है रोइस, तो वो कहते थे आप उनको इनके पास क्यों ले जाते हैं? जमील भाई का बेटा लिखी, उन्होंने कहा आप इनके पास क्यों ले जाते हैं, इनके पास कौन सा कोई शिफा का तोड़, अब हमारे पास लाए, हमारे पास शिफा का तोड़। अच्छा होते भी लाए गए, होते भी कुछ ना। लालच क्या दी? एक बंदा वैसी परेशान है, उसको लालच दे दी, एरे को कुछ नहीं होना, मेरे को अपनी मेंबरशिप बताई, तस्वीर वीडियो बनाई, अगे भेज देती तो ठीक थे, तो भी नहीं होया। लेकिन याद रखिएगा, इसमें पासवान तो फंसेगा, लेकिन इसमें जो कलीसिया का मेंबर है वो ज्यादा फंसेगा। समझो ये उसके लिए एक एग्जामिन है, उसके लिए एक टेस्ट है कि ये करेगा क्या। तो यहां पर आके भी हमारे लोग जो है वो फंस जाते हैं। आगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका उनका है, हुक्म हो चुका है, और कुछ भी करते रहे, कोई फायदा नहीं। आगे, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। हलाकत तो नहीं है, नहीं कि खत्म होएगी, मरेंगे। आगे, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा। हाँ जी, आगे थोड़े फॉलन एंजल्स, कहां पतरस और कहां पैदाइश 5 बाब 6 बाब। तो पतरस क्या कहने लगा है कि उन्होंने थे गिराए हुए ਜਿਹੜੇ फरिश्ते सन, जिन्होंने गुनाह किया, उन्होंने नहीं छड़िया, बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया कि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अब यहां पे जो लफ्ज लिखा है ना, जहन्नुम में भेजकर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जहन्नुम में भेजकर। तो यीशु मसीह तो कह रहे थे कि इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है। वो आती हैं, यीशु मसीह को देखती हैं, झुकती हैं, क्या कहती हैं? उस्ताद है, मालिक, ऐ खुदा के बेटे, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालना आ गया। उन्होंने कहा निकल जा, सूरज बढ़ जा। अजाब में उनको नहीं डाला, लेकिन इस खत में जब आप पढ़ते तो यहाँ लिखा है जहन्नुम में भेजकर। तो क्या जहन्नुम में वो चलेंगे? इससे हमें एक और तमसील भी मिलती है, अक्सर अमीर ज़ादे दी और उस लाजर की तमसील पढ़ते हैं जिसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, तो दोनों मर जाते हैं। तो हमें ये तमसील बताई जाती है कि देखें जी, बीच में एक अथागड़ा है और अथागड़े से ना कोई इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, और ये जो गुनाह, जो अमीर इंसान है, ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को, और नूह के जमाना के पहले के जो लोग मरे थे उनको बचाने के लिए जब यीशु मसीह मरे तो उन्होंने 3 दिन 3 रात कब्र के अंदर भी वो मरे नहीं रहे, बल्कि जाकर वहां पे मुनादी की। आप देखते हैं ये भी हमारे अंदर एक बिद्दत बहुत ज्यादा है कि अगर यीशु मसीह जब मर गए थे 3 दिन 3 रात, तो वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो हमें बताया जाता है कि जी उन्होंने थल्ले जाकर भी बड़ी जंग लगी, आर्मी अरवाच गए, ठंडी जगह थे, उसे ठंडी जगह भी कहते हैं, ठंडी जगह थे, बाप इब्राहिम की गोद भी कहते हैं इसे। उथे गए थे मसीह ने, उथे भी जाके जंग लड़ी और यीशु ते मान ले और वो भी रुआ बच गई। इतनी बड़ी बिद्दत है और ये मशहूर जमाना है, और ये आई कहां से? आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि लफ्ज है बल्कि जहन्नुम में भेजकर, तो यहां पे लफ्ज जहन्नुम नहीं आया। ओरिजिनल मतन में देखते तो यहां पे लफ्ज अथागड़ा आया है, द बॉटमलेस पिट। आपने अवेंजर्स मूवी देखी होगी, अवेंजर्स मूवी में जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो लोकी को डालता है तो वो कहता है मैं पिछले आधे घंटे से गिर रहा हूं। एक ऐसा बॉटमलेस पिट है, ऐसा एक गार या एक अथागड़ा है, ऐसी एक कुआं है, अंधेरा है जिसमें वो गिरते ही जा रहा है, और वो कैद है। वो क्या है? कैद है जहन्नुम के दिन के लिए।
اسے تاریکی میں ڈالا جائے گا. اگر ہم پہلے کہہ دیتے ہیں وہ جہنم میں چلا گیا تو پھر یسوع مسیح کے اس قول کا کیا ہوا جو متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ انہاں ایک دن مقرر ہے, ایک دن انہاں نو سٹیا جائے گا اور ایرے کارندیاں نو بھی. اور یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا. نہ ہی پہلی دنیا کو. پہلی دنیا کون سی تھی؟ نوح کے زمانے سے جو پہلے تھی وہ پہلی دنیا تھی. نوح کے زمانے جو آج ہم لوگ ہیں ہم دوسری دنیا ہے, یہ یاد رکھیے گا. آگے اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو مما اور 7 آدمیوں کو بچا لیا, اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی, اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا. ہاللویا. یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کا بھی ذکر آ گیا. سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا تھا؟ آگ اور گندک خدا نے ڈالی, یعنی کہ خدا نے اپنا وہ قہر نازل کیا کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد یہ نہایت ہی خوفناک خدا نے بربادی ڈالی. من دے اولے آگ لگی ہوئی ہے. کیا حال ہوتا ہوگا اس زمین کا؟ تو جرے اتنے وجدے ہونے نے وہ پتہ بھی نہیں چلتا نا کتنے چلا گیا. ایک چھوٹی سی گولی آئی اور ہمارے بھائی کے دیکھے بیٹے کو لگی اور اس نے کیا کیا گھر بنانے میں ہوائی فائرنگ نیو ایئر میں جب لگی تو وہ خالی بلٹ تھی بچے کے لگی. تو آپ سوچیں آسمان تو جڑا 40 کلو کا اولا آئے گا وہ تو آئٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور وہ بارش ہوئی تھی بھائی کیا ہوئی؟ اس زمین پہ آج بھی سلفر ہے اور اس جگہ پہ ذرا سے بھی تیلی لگ جائے آگ اٹھا لیتا ہوں. اب جب آپ دیکھتے ہیں وہ جگہ ہے کہاں, وہ زمین پر خدا نے آج بھی رکھی ہوئی ہے جگہ. آپ دیکھتے ہیں ایونجرز مووی میں جو ہرے کلر کی لڑکی دکھائی گئی ہے اس کا نام ہے گمورا, اس کو امورا کہتے ہیں. آپ کے سامنے سارے آپ نے لفظ سنا ہوگا کرس جیریکو جو ریسلر ہے, جیریکو کا جو مطلب ہے وہ ہے یریو. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وہ جان بوجھ کے رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں, کر لو جو کر سکتے ہو. میں وہی تو کہنا شیطان میں وہ کتنی محنت کرتا ہے, مسیح عیسائی کیا کی کرتا ہے, یہ آپ کے سامنے ساری چیزوں نے رکھی. اور خدا نے اس لعنت کو آج بھی رکھا ہوا تھا وہاں پہ. اور نمک کی جو ستون بن گئی تھی یہ آج بھی موجود ہے. نمک نہیں ستون والا کیوں بنایا سی؟ مٹی کا بنا دیتے, چینی کا بنا دیتے, یہ پتھر کا بنا دیتے, لوہے کا بنا دیتے, سلور کا بنا دیتے, سٹیل کا بنا دیتے. اور باخدا میں آپ کو بتاؤں یہ بھید میرے اوپر کبھی زندگی میں نہیں کھولا. باتوں باتوں میں نمک کا لفظ آیا تو نمک سے وہ ساری آیتیں میرے اندر گھومی. اب نمک ہی کیوں؟ اگر لوہے کا بنتا تو لوہا زنگ سے ختم ہو جاتا. لوہا زنگ سے ختم ہو جاتا. جی نمک بھی تو پانی سے پگھلتا ہے. کیا پگھل جاتا؟ نمک پانی سے پگھل جاتا ہے اور نمک کبھی ختم نہیں ہوتا, ہی یاد رکھیے. وہ مکس تے ہو جاتا ہے لیکن جو تم دوسرے پروسیس لے آؤ پھر کر نظر آئے. سمندر نہاندے ہو چٹا چٹا ہوندا ہے تینوں اور نمک ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے قربانیوں کی جب آپ حالتوں کو دیکھتے ہیں تو قربانیوں کے اوپر بھی نمک لگایا جاتا تھا. ایون دو کہ آپ کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے اندر جو مسالہ جات جو کیمیکلز ہیں زیادہ تعداد اس میں نمک کی ہوتی ہے. کیوں؟ نمک چیز خراب نہ ہو, لاش خراب نہ ہو. اور وہ آج تک موجود ہے. آپ سوچیں خدا کے لوگوں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے ساڈے لیے عبرت کے لیے. یہ سلفر یہ پورے جو 2 شہر ہے سدوم اور عمورہ یہ آج بھی دنیا میں اندر ہے, یہ آج بھی موجود ہے. اور جہاں آپ جائیں گے تو سلفر کہتے ہیں جنہیں آگ لائی ہے, آگ لان دے بعد وہ کی ہوندی ہے راکھ دی خوشبو نہیں ہوندی. صدیوں سے خدا نے غرق کیا ہے, آج بھی ان شہروں سے راکھ کی خوشبو آتی ہے. آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا ایسے جیسے 1-2 گھنٹہ پہلے یہاں آگ لگی. یہ ہے خدا کی قدرت. مارا کیوں خدا نے؟ چلے یہ تو پتا چل گیا مار دیا, مارا کیوں؟ وہاں پر بھائی ایسا تھا, بدی کیا تھی؟ اور گیز لیسبین مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ مباشرت کرنا شروع ہو گئے. اور آپ کا ٹاپک کیا ہے؟
तो कुछ जरा रिलेट करें ना इससे। रिश्ते आसमानी जिस्मों ने बगावत की और वो गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, और ये वो गुनाह था जो खुदा को फिर से नहायत नापसंद था, क्योंकि पहले भी इससे यही काम हुआ, अब वो काम होना शुरू हुआ है। खुदा देखें कैसा हलीम खुदा है, बचाता आता है, छोड़ता रहता है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। 6 बार तो तमाशा लगा है, आगे 18वें 19वें बार फिर शुरू हो गया। पहले पानी से मार रहा है, अब आग से मार रहा है। अब मुझे बताएं इंसान चाहता क्या है? वो कहते हैं कि अरे तेरे नाए ने ना फरिश्तगान या बुजुर्ग ए सानू दे दे। लूत कहता है भाई साहब मेरी 2 बेटियां हैं, कुंवारी है, मर्दों को जानती भी नहीं, इनको ले लो। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, सानू बंदे ही चाहिए। और उनको पता था वो कौन है। उन्होंने कहा लूत अंदर आ जा, अब हम जाने और ये जाने, अंधा कर दिया हमको। फिर भी वो गेट टटोल रहे थे, अन्ने होके भी दरवाजा वेखन दे केड़ा दरवाजा खोलने थे, फिर भी उन्होंने नाम जाके अब बदी करिए। इतनी बदी का म्यार देखे। आप लोगों को बताया जाता है कलाम खुदा हर रोज पढ़े, नहीं पढ़ते। इतने सालों से आपको कहा जा रहा है इतनी बड़ी बदी। ये वही बदी है, बिल्कुल सेम है दोनों। या ओ काम कर लो या कलाम रोज ना पढ़ो, दोनों सेम बदियां हैं। तो सोचे खुदा ने उनको नहीं छोड़ा तो आपको मुझे कहां छोड़ेगा, और हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को कहां से छोड़ेगा। वही बदी थी तो खुदा ने मलिया मेट कर दिया, नस्लें की नस्लें खा गया खुदा, मार डाला सबको। न जानवरों को छोड़ा, न चरिंद को छोड़ा, न परिंदों को छोड़ा, न घास को छोड़ा, न दरख्तों को छोड़ा, तमाम नस्ल को खुदा खा गया। सिर्फ किस वजह से कि जब हम सौंदे नहीं किसी दी अपने कम्मा दे विच बड़ी जाने और खुदा के कलाम की बेहुरमती करते हैं, खुदा के कलाम को हम नीचा दिखाते हैं। तो इसी कलाम खुदा में आगे बढ़ते हुए एक और आयत पढ़ेंगे, मुकद्दस यहूदा की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम। सुनिएगा, बस ये आगे वाली आयत आप निकालिएगा, सिर्फ सुनिएगा। यहूदा का खत एक ही खत है, उसकी 6ठी 7वीं आयत में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, अपने फरिश्ते हों उनको छट के अगे की कीता जी, और उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर उन्होंने कैद चुने। मैं अक्सर आपको बताता हूं कई फरिश्तगान या कई जिन्ने बदलू ऐसी हैं, वो आपके सामने आ जाते, हार्ट अटैक नहीं मार जाएगी। उनको खुदा ने क्या किया, कैद करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तारीकी के अंदर रहे और रोजे अजीम अदालत के दिन, वही अदालत के दिन जो होए थे उन्होंने बटाया लगी आके चुकाओ, उनको कैद रखा हुआ है, बॉटमलेस पिट के अंदर कैद रखा हुआ है। ये वो हैं जो निहायत ही शातिर। आप देखते हैं उन्होंने क्या क्या साइंस दी, इंसानों को क्या क्या इल्म दिया, और इंसानों के साथ रगबत बना के हल्क पैदा हो रहा है, इंसानों के साथ रगबत बना के स्पाइडरमैन पैदा हो रहा है, इंसानों के साथ रगबत बना के द जॉन द फिश गॉड पैदा हो रहा है, मछली वाला खुदा एक्वामैन, हल्क पैदा हो रहा है। ये सारे ही शयातीन की औलाद है, और हमारे सामने आज इन्हें हीरो बना के पेश किया जाता है, हमारे सामने इनको हीरो बना के पेश किया जाता है। और आगे वाली आयत में लिखा, और उसी तरह सदूम और अमूरा और उसके आसपास के शहरों में भी, सदूम और अमूरा के नाल ते काम होया ही, काम फैल रहा सी। देख रहे हैं शैतान को कितनी काबिश उसकी। आपने काम को फैलाया, आप देख। सिल्वेस्टर जी इधर आइए, एक्सक्यूज मी, आप भी इधर आइए, को पकड़ 2 लाइट की जरूरत है जी। फीवर है, फौरन ही हो गया। तो जब आप देखते हैं कि आसपास के शहरों में भी ये काम बढ़ना शुरू हो गया, और आगे लिखा है उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ। किस जिस्म की तरफ? मर्द के साथ खुदा ने पैदा किया, या मर्द को औरत के साथ पैदा किया, मर्द को औरत के साथ पैदा किया, औरत को मर्द के साथ पैदा किया। इत्थे ते तुसीं चाइना दे विच वेखोगे बंदा कुकड़ी नाल शादी कर रहा, कुकड़ी मुर्गी के साथ, बंदा लेडीज खोते के साथ शादी कर रही है। और कौन इनके निकाह करा रहा है? कोई गैर कौम नहीं करा रही, असी जिंदाबाद। एक गधे से तो निकाह दे पैसे ले लिए। नहीं, वो जो मालिक है वही देगा। बंदा बंदे के साथ करा रहा है, बीबी बीबी के साथ करा रही है।
50 साल की औरत 10 साल के बच्चे के साथ करा रही है, और 60 साल का बाबा जो है वो 8 साल की बच्ची के साथ करा रहा है। और देखें आहिस्ता से शैतान देखे कैसी मेहनत करता फैल रहा है। आप फैला रहे हैं अपने हाथ पांव, आप अपनी हदूद को फैला रहे हैं, आप किसी को कलाम सिखा रहे हैं, आप किसी को खुदा की तरफ ला रहे हैं। शैतान को देखें उसकी कैसी और तेजी से काम फैलता है। आगे देखें गैर जिस्म की तरफ रागिब हुआ और हमेशा की आग की सजा के गिरफ्तार। जब ये काम होता है तो दोजख की सजा के वारिस बन जाते हैं। और आपको पता है ये जो गैर जिस्म की बात हुई है, जिस्म भी अलग अलग होते हैं। हारिस भाई के साथ मिलकर आयत निकालेंगे, दूसरा करंथियों, जिस्म भी अलग अलग होते हैं। अब आप देखिएगा ये जिस्मों के हिसाब क्या है। दूसरा करंथियों, सॉरी, पहला करंथियों उसका 15वां बाब 39 से 40 आए 40 से 40। जी। पहला करंथियों उसका दूसरा 15वां बाब ये 39 से 40 है। तो पाकला में लिखा है सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, सब गोश्त यकसा एक जैसे गोश्त नहीं है। यहाँ तक आगे। हाँ, आगे। बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चुपाइयों का गोश्त और, आदमियों का गोश्त और होता है और जानवरों का गोश्त और। आगे। परिंदों का गोश्त और जी। और है, और मछलियों का गोश्त और। ठीक है। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। बेशक। आफताब का जलाल और है महताब का जलाल और है। सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। आमीन। अब जब देखते हैं आफताब का जलाल और महताब का जलाल, और आफताब किसे कहते हैं, सूरज, महताब किसे कहते हैं, चाँद। तो आप देखते हैं कि हर एक चीज का, इधर मार लाई, हर एक चीज का अलग अलग जलाल है। मछलियों का अलग है जिस्म, फरिश्तों का अलग है जिस्म। यही जिस्म को खुदा ने उसके जिस्म के साथ, दूसरे लफ्जों में आप कहेंगे पैदाइश पहले बाब में लिखा है खुदा ने अपनी जिन्स के मुआफिक सबको पैदा किया, उसकी जिन्स के मुआफिक उसे पैदा किया। मछली है तो मछली के साथ, चुपाहा है तो चुपाहे के साथ, लेकिन फरिश्ते हैं तो जो इंसानों के साथ होगा तो क्या होगा, डीएनए मॉडिफिकेशन होगी। खुदा के बनाए हुए कुदरत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, खुदा के बनाए हुए रूल रेगुलेशन के साथ आप क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो खुदा तो नहीं छोड़ेगा। और ये फिर इतना खौफनाक हो गया, काम इतना खौफनाक हो गया, पहला पत्रस 5 बाब उसके 8 आयत में लिखा है शैतान इब्लिस गरजने वाले शेर की तरह आप लोगों को फाड़ने को है, गरजने वाले शेर की तरह। अक्सर कहा जाता है कि यीशु मसीह को वो गीत नहीं गाना चाहिए, शेरे बबर यीशु, क्योंकि शैतान को भी कहा गया है। क्या कहेंगे आप इसमें? यीशु मसीह को भी कहा गया यहूदा का शेर बबर। हाँ, तो कहते हैं शैतान को भी कहा गया है। शैतान तो कॉपी करते हैं, असल कॉपी यीशु मसीह। और सही बात है। एक यीशु और एक बर यीशु, याद रखिएगा कोई ना कोई फर्क जरूर होता है, कोई ना कोई फर्क शैतान जरूर छोड़ देता है। अब यहां पर क्या फर्क छोड़ गया, यहां पे लफ्ज जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है गरजने वाले शेर की माने। यीशु को पढ़ेंगे तो वो लिखा है शेरे बब्बर, ये खाली शेर और गरज रहा है, वो शेरे बब्बर, खाली शेर शेरे बब्बर, खाली शेर शेरे बब्बर। ये इंसानों की रूहों को फाड़ डालता है, वो तो इंसानों के लिए निजात देता है। शेर और शेरे बब्बर, ये याद रखना है आपने, शैतान के लिए शेर की मानिद, फिर वो शेर नहीं है, शेर की मानिद। लेकिन यीशु के लिए पैदा क्या लफ्ज इस्तेमाल हो, शेरे बब्बर। शेरे बब्बर का क्या मतलब होता है? शेरे बब्बर जो लायन बड़ा होता है, लायन होता है। तो पूरे जंगल का राजा, शेर भी तो उसी को कहते हैं। शेर बिन्नू कहीं दे। लाइन के कबीला का सबसे बड़ा किंग। बब्बर लफ्ज का क्या मतलब? बब्बर शेर लायन को बोलते हैं और शेर जो है वो टाइगर को बोलते हैं। टाइगर को क्या बोलते हैं? टाइगर को क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। टाइगर को बाघ बोलते हैं। चले, अब इसमें थोड़ा ये है लफ्ज, ये बाघ है टाइगर। वो अंधेरा टाइगर को बाघ बोलते हैं। बाघ आपने देखा है कौन सा? जी जी। इंडिया में जो होता है, और जो ऑरेंज झुर्रियों वाला। शख्स को खाया था जिसने, और वो अगर आप ताकत का हिसाब लगाया जाए तो शेर बब्बर से ज्यादा ताकत है। उसके कैनाइन्स भी जो है और उसके मसल्स भी ज्यादा जोरावर।
फिर भी वो किंग है। हाथी इनसे भी ज्यादा जोरावर, फिर भी वो किंग है। शेर बब्बर कहते ना दलेर है, और दलेर को होते शेर बब्बर। और दूसरी बात जब आप देखते हैं इनमें थोड़ा इनमें थोड़ा फर्क होता है। एक लफ्ज लायन, लायन कहते हैं शेर बब्बर को जिसके बाल किंग जिसे कहते हैं। एक लफ्ज है लायन, लाइनस, लाइनस जो होता है ना वो उनकी शेरनी होती है, शिकार जो करती है। लफ्ज आता है टाइगर, टाइगर कहते हैं बाघ को, शेर बोल के देते हैं बाघ को। लियोपर्ड आ जाता है, लियोपर्ड आ जाता है, लियोपर्ड की आपने देखोगे लेपर्ड मूवी है, हमारी कोरियर सर्विस भी है। तो तेंदुआ जिसे आप कहते हैं जो दरख्तों के ऊपर रहता है, उससे नीचे आ रहा है चीता आ जाता है, चीता जिसमें बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फिर आप एक और नस्ल आ जाती है इसमें लेपर्ड, सॉरी पूमा नहीं यार, वो जैगुआर, जो आप जिनके नाम ले रहे वो छोटी नस्ल है। जैगुआर आ जाता है, जैगुआर जो काला होता है, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं, जो कार भी है बड़ी एक्सपेंसिव जो है। तो ये इनकी थोड़ी नस्लें हैं। यसु मसीह को शेर बब्बर लफ्ज का मतलब है बादशाह, अरबी और फारसी जुबान का लफ्ज है। क्या है लफ्ज का मतलब? बादशाह। शेर बब्बर यानी कि बादशाह शेर। लफ्ज जो आम सा शेर है ना, आम शेर, वो एक्चुअली शेरनी के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आ रही? लफ्ज जो है ना लायनस, लायनस जिसे आप शेरनी कहते हैं, वो शेर लफ्ज भी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए बब्बर शेर इस्तेमाल होता है। बब्बर शेर जो है वो द किंग है, बहुत कम शाज़ो नाज़िर को शिकार करता है, वो अपना किंग है। और ये जो गरजने वाले शेर की माने से चीर फाड़ करता है, नस्लों को उजाड़ता है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि अब ये इतना खौफ हो चुका है कि आपकी मेरी रूहों को फाड़ डालता है, आपकी मेरी नस्लों को फाड़ डालता है, पंजा मार के अगर आप गलत काम कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं लिखा, उसके उलट किसी बिद्दत को, तालीम को आप उजागर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि गरजने वाले शेर की मानिंद आप क्या हो गए, गुमराह हो गए, और उसने आपकी नस्ल को फाड़ डाला। दिखने में तो आप जो हैं वो बड़े शाश बशाश और चुस्त तंदुरुस्त है, लेकिन खुदा की नजर में मुड़ते हैं। आखिरी बात आपसे करने को, दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 14वें में लिखा है, क्या ही हर्ज है कि शैतान इब्लीस अपने आप को नूरानी फरिश्ता बनाकर दाऊद के सामने भी आ गए थे जब उन्होंने बनी इस्राइल का मर्दमशुमारी की। जब आप देखते हैं कि नूरानी फरिश्ता भी बना के अपने आप को क्या कर लेता है, वो पेश कर लेता है, ताकि लोग आसानी से क्या हो जाए, गुमराह हो जाए। उसके बाद जब आप देखते हैं मत्ती 25 बाब उसकी 41 आयत में लिखा है कि खुदा ने जहन्नुम की आग को बनाया है ताकि क्या हो, इसमें शैतान इब्लीस और उसके तमाम फरिश्तेगान उसके अंदर जाए, गिरे। और दाऊद के सामने भी जब आप देखते हैं कि जो मर्दमशुमारी की गई तो वो नूरानी फरिश्ता ही बन के आया और मर्दमशुमारी में वो फंस गया। आखिरी बात आपसे करने को है, जब मुकाशफा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 23 आयत पढ़ते थे, शायद को आप पढ़ ही लें। मुकाशफा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 23 आयत, बिल्कुल जी 18वां बाब सब निकालने के बाद मुकाशफा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 23 आयत। और चराग की रोशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी न सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई। आमीन। अब यहाँ पे लफ्ज लिखा है जादूगरी। यूनानी लफ्ज जब आप देखते हैं तो यूनानी लफ्ज यहाँ पर हमें मिलता है फार्मिका। फार्मिका ऑल टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल उर्दू में आप समझ जाए क्या है, फार्मास्यूटिकल जितनी भी है, दवाइयां की कंपनियां जितनी भी है, दवाई से जो भी चीज मुंसलिक है उसे यहाँ पर लफ्ज कहा गया है सोर्सरी।
जादूगरी लफ्ज को किंग जेम्स देखते हैं, लफ्ज क्या है? सोर्सरी लफ्ज को जब आप ट्रांसलेट करते हैं यूनानी जुबान में तो लिखा है फार्मिका, और फार्मिका जो है ये रूट वर्ड है ऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। जादूगरी से आप क्या होते हैं? मदहोश, गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, वो काम करते हैं जो खुदा के खिलाफ है। आज मेडिसिन जब आप लेते हैं तो अभी तक तो ये खुदा के साथ चल रहा है काम, लेकिन एक वक्त आएगा ये फार्मास्यूटिकल जो है, दूसरे लफ्जों में जो साइंस है, साइंस आपको पता है खुदा को मानती है, साइंस के जरिए से ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पैदा किए जाएंगे जिससे आपकी फ्री विल खत्म की जाए। आप जिस जिंदा खुदा को मानते हैं वो जिंदा खुदा को खत्म किया जाए, और वन वर्ल्ड ऑर्डर में जिस कायनात को पूरे को एक खुदा जिसको मानेंगे उसको आप फॉलो करें। और इस पर रिसेंटली बड़ी तेजी से काम हो रहा है। साइंस या फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन इस तरह की भी लाई जाएंगी जिससे आपकी फ्री विल को, आपने वो देखा होगा वो पेंडुलम घुमाते हैं सामने तो क्या हो जाता है, बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, सुन्न हो जाता है, तो जोरी खेलते हो करता है। इस तरह की कई मेडिसिन ऐसी होंगी जो आपको लगाई जाएगी। मिसाल एक देता हूं छोटी सी, आपने देखा होगा कि बीच में एक अफवाह हुई थी कि कोरोना ने वो ना लगाओ टीके, और यकीन है कई लोग कहते थे उससे हार्ट अटैक से लोग मर गए, तो याद रखिएगा मार देते वो दोपेला भी है। दूसरी बात उसमें कहते थे कि उसमें कोई चिप जारी है, वो ब्लड में जाती है तो उससे आपकी फ्री विल खत्म हो जाती है। यहाँ आपने और भी देखा होगा तो चिप भी लगाई जा रही थी गर्दनों में, माथों पे या हाथों पे। इसका बिब्लिकल रेफरेंस बड़े तगड़े हैं कि शैतान इब्लीस जो है अपनी छाप कहां पर करेगा? आपके सर में और आपके हाथों पे। सर में और हाथों पे क्यों करेगा? क्योंकि खुदावन ने कहा था कि अब मेरा कलाम तुम अपने हाथों पे और अपने बच्चों के हाथों पे और अपने बच्चों के माथों पर बांध। हेड ऑफिस में खुदा का कलाम, हाथों में भी खुदा का कलाम। शैतान इब्लीस इस हेड ऑफिस को कैप्चर करेगा और हाथों से आपके बदी के काम करवाएगा। अभी भी हो रहे, लेकिन उस वक्त उसका अरूज होगा। उस वक्त उसका क्या होगा? अरूज होगा। तो मेडिसिन से भी आपका ये काम तबाह किया जाएगा, और जादूगरी से तो ये काम तबाह हो ही रहा है। तो इसके बाद जब आप देखते हैं कि जिंदा खुदा मेडिसिन के मामले में आपके सामने क्या कहता है, मरकस 16 बाब उसकी 18 है, तो जब खुदा का पाखरू आपके अंदर होगा तो आप सांपों को भी उठा लोगे, बुच्छुओं को कुचल देंगे, और कोई जरर करने वाली चीज भी पिएंगे तो आपको जरर नहीं पहुंचे। इन सारी चीजों का एक ही तोड़ है, और वो है जिंदा खुदा का पाक कलाम। वो है जिंदा खुदा का पाक रूह कुदैश। वो है जिंदा खुदा की पाक रूह यहोवा एलोहीम खुदा बाप की आपके अंदर हुजूरी। और जब आपके अंदर हुजूरी होगी तो अजीजों तभी आप इन सारी चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। वरना हमने ये भी पार्ट 1 में सीखा था कि ऐसी देवी है जिसे ईस्टर हम कहते हैं, ईस्टर ते आंडे ते खरगोश आया ने, और खरगोश हमने देखा कितनी बड़ी पोर्न इंडस्ट्री है, और आंडे की लेना देना है। तो ये सब आपके फॉलन एंजल्स की गेम आज भी चल रही है। मेडिसिन अद्वियात की तालीम भी उन्होंने ही दी जो नेगेटिव है, जो गलत है। मतलब याद रखिएगा डॉक्ट्राइन जो है, जो तबीबे आजम है जिंदा खुदा का बेटा यीशु, तबीब उसी में से निकलते हैं, डॉक्टर्स उसी में से निकलते हैं। लेकिन अजीजों ये भी याद रखिएगा शैतान इब्लीस इसे इस्तेमाल करता था और इन फ्यूचर भी सोर्सरी डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा। जिसके अंदर कलाम होगा वो बच जाएगा, जिसके अंदर कलाम नहीं होगा वो नहीं बचेगा। वन लाइनर मरकजी आयत आखिर इसका ये है निचोड़ जिसे आप कहते हैं, द सेंट्रल पॉइंट इज दैट के गिराए हुए जो थे वो फॉलन एंजल से, खुदा के बेटे वो फरिश्तान थे जिन्होंने इंसान की बेटी यानी गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए और उनसे जब्बार द अगेंस्ट ऑफ याहवे एलोहीम, जिंदा खुदा के मुखालिफ ऐसे बशर पैदा हुए, ऐसी मखलूक पैदा हुई जो इंसानों को ही खा जाते थे। इससे एक तीर से दो शिकार, एक तो औरतों के पेट फाड़ के निकलते थे, औरत भी मर गई क्योंकि औरत की नस्ल जो किन्ने आना ही, औरत को भी खत्म किया, और दूसरा उसमें से जो पैदावार हुई वो शैतान की पैदावार थी, ना के मसीह। दोनों चीजों को वो बर्बाद किए जा रहे थे। लेकिन खुदा पंजाबी कहते जिन्हों खुदा रखे फिर नूह का जमाना आ गया 8
और अगे मुकद्दसा मां मरियम आ गई, एक ही काफी सी। हालेलुया। सो खुदा का सबके साथ हो, खुदा का सबको बड़ी बरकत दे। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। आइए अजीजों, कलाम खुदा के इस बरकत के लिए हम दुआ में रहनुमाई चाहेंगे सनी भाई की, इस कलाम खुदा के लिए दुआ करें। हालेलुया। जो अपने गहरे दिल तूने हम पे खोले खुदा ने, ये कलाम हमारे लिए बारिश से बरकत है खुदा ने। खुदा ये कलाम जो भी आज सुना, हमारे दिलों में